Welcome to the lecture number 10 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are going to convert the decimal number system into binary number system and decimal number system into octal number system and decimal number system to hexadecimal number system. Now, what is a decimal number system? The decimal number system is commonly used in our daily life. We can use the decimal number system to quantify the weight or temperature or price of a mobile phone or the salary we are getting. A decimal number system has a base of 10, so it has a total of 10 digits from 0 to 9. So we have 10 discrete digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now what is a binary number system? A binary number system is used by computers and it has 2 as its base. So it has 2 discrete digits that are 0 and 1. Now what is octal number system? Octal number system has a base of 8 and it has 8 discrete digits varying from 0 to 7. Hexadecimal number system has 16 base, so it has 16 digits varying from 0 to 15. The digits from 0 to 9 are written as it is, while the numbers 11, 12, 13, 14 and 15 are represented using alphabets A, B, C, D, E and F respectively. So in this lecture we are going to perform these different conversions from decimal number system to other systems. Now the first conversion is decimal to binary. It is a simple process. We will be using simple division mechanism to convert a decimal number system to a binary number system. However, we are converting the decimal number system into binary system, so we will be dividing decimal number system by 2 repeatedly till we reach the quotient value of 0 or 1. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ कि डिवीजन वर्क कैसे करती है या डिवीजन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं. मैथमेटिक्स में हम डिवीजन को ऐसे इंडिकेट करते हैं. एक टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड. एक टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको हम कहते हैं डिवाइज़र. एक टर्म यहाँ पर होती है जिसे हम लिखते हैं कोशेंट, और एक टर्म यहाँ पर होती है जिसे हम कोई वैल्यू लिख देते हैं, और डिविडेंड में से जब वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसे हम रिमाइंडर कहते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक डिवीज़न है. मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आई एम डिवाइडिंग 6 बाई 2. सो वी विल राइट 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2. 2 3 टाइम्स इज इक्वल टू 6 एंड वी गेट इज 0. सो यहाँ पर ये 2 जो है ये डिवाइज़र है, ये 3 जो है ये कोशेंट है, 6 जो है वो डिविडेंड है, ये 0 जो है ये रिमाइंडर है, और ये 6 जो है ये वैल्यू. सो इस तरह से बेसिकली हमारी डिवीजन काम करती है. तो जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को 2 से डिवाइड करते जाएंगे. कब तक डिवाइड करते जाएंगे? जब तक हमारे पास कोशेंट वैल्यू 1 से लेस ना हो जाए, यानी 0 या 1 तक ना पहुंच जाए. या आप इसको दूसरी टर्म में ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारी रिमाइंडर वैल्यू 0 या 1 तक ना चली जाए. हम ये रिमाइंडर्स फाइंड आउट करते रहते हैं, उनको एक साइड पर लिखते रहते हैं, और उसके बाद एंड ऑफ द प्रोसेस पे हम बॉटम टू टॉप उसे रीड करते हैं तो वो बाइनरी नंबर बन जाता है. ये बेसिकली एक सिंपल स्कीम है. हमारे पास एक डेसिमल नंबर,
हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कोशेंट लिखेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे. नाउ इफ़ द कोशेंट इज़ 1 or 0, then our conversion is complete. If it is not, then we will again divide the quotient with the 2. We will again divide the quotient by 2 and we will get a remainder. Now we will again check whether the quotient is 1 or 0 or greater than 1. If it is greater than 1, we will again divide the quotient by 2, and this process continues until we reach a quotient value of 1 or 0. Now the 1 or 0 quotient value will be treated as terminated remainder. After that we will read the terms in this direction from bottom to top, and we will write these terms so that we have a conversion. Now this is our first example to convert decimal system into binary number system. यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने डिवीजन कैसे करनी. लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 7. 7 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस है कि हम लिखते हैं 2 3.5 टाइम्स इज इक्वल टू 7, सो द रिमाइंडर इज 0. But in this conversion we will be using integer division. Now what is integer division? In integer division, quotient is always integer. यहाँ पर हमारे पास quotient जो है वो डेसिमल नंबर में या फ्लोटिंग नंबर में. इंटीजर डिवीजन में कोशेंट हमेशा इंटीजर होगा. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 7 बाय 2. नाउ वी हैव 7, वी हैव 2. नाउ 2 4 टाइम्स इक्वल टू 8, वी कैन नॉट गो देयर. 2 3 टाइम्स इक्वल टू 6, सो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे. नाउ 2 3 टाइम्स इज इक्वल टू 6 एंड द रिमाइंडर हेयर इज 1. ये हमारे पास रिमाइंडर 1. ये बेसिकली इंटीजर डिवीजन है. अब यहाँ पर नो डाउट हम 3.5 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम जो कोशेंट है उसको भी इंटीजर वैल्यू में ही लेंगे. अब लेट्स सपोज हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. हमने 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में. सो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि आपसे पूछा जाएगा 10 कि 10 अगर हमारे पास हो 10 के सिस्टम में तो 2 के सिस्टम में क्या होगा. तो उसके हम सिंपल क्या करेंगे, ऐसे लाइंस प्लेस कर लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10. अब 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे. नाउ 2 5 टाइम्स इज 10, सो 5 इधर आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0. अब कोशेंट वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कोशेंट वैल्यू 1 या 0 ना रह जाए. सो अगेन वी विल डिवाइड 5 बाय 2. नाउ 2 3 टाइम्स इक्वल टू 6, हम इसको नहीं यूज़ करेंगे. 2 2 टाइम्स इक्वल टू 4, हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे. अब 2 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1. कैसे रिमाइंडर 1 बचेगा, सिंपल डिवीजन से. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4 एंड द रिमाइंडर इज 1. सो हमने सिंपली क्या किया कि जो कोशेंट वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और जो रिमाइंडर वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया. इसी तरह ही हमने यहाँ पर किया फर्स्ट आइट्रेशन में. यहाँ पर भी हमने 10 को डिवाइड किया 2 से. 2 5 टाइम्स इज इक्वल टू 10 एंड द रिमाइंडर इज 0. सो हमने सिंपली क्या किया,
इस 5 को हमने लिख दिया यहाँ पर और इस 0 को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे। नाउ 2 1 टाइम्स इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। अब अगर आप देखें तो हमारे पास कोशेंट वैल्यू आ गई है 1। अब हम इससे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम इसको ऐसे रीड आउट करेंगे। अब हमने सिंपल इसको ऐसे रीड आउट करना, तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा 1 0 1 0। सो आप कह सकते हैं कि ये 1 0 1 0 इसकी क्या होगी, बाइनरी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 125 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 2 पे। नाउ क्वेश्चन इज 125 इन बाइनरी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 125 इन डेसिमल क्वेश्चन मार्क 2। सबसे पहले हम फिर वही करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हम 125 को 2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवीजन कौन सी करेंगे, इंटीजर डिवीजन। नाउ 260 टाइम्स इज इक्वल टू 120, 261 टाइम्स is equal to 122 and 262 times is equal to 124. So 124 is close to 125, तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 125 will be the dividend, 2 will be the divisor and 262 times is equal to 124. So the remainder is 1. अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट वैल्यू, वो क्या है 62, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर वैल्यू जो क्या है 1। अब अगेन 62 जो है वो ना 0 है ना 1 है, तो हम 62 को अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे। अब अगेन 2 पर कैसे डिवाइड करेंगे, 230 टाइम्स इज इक्वल टू 60, 231 टाइम्स इज इक्वल टू 62। सो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, अगेन हम डिवीजन करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे। 231 टाइम्स इज 62 and what is the remainder? Remainder is simply a 0. So we will write 2 here. 231 times is 62 and we will get 0 as a remainder. Now again हम 31 को फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। 215 टाइम्स इज इक्वल टू 30, विच इज क्लोजेस्ट। 215 टाइम्स इज इक्वल टू 30 एंड रिमाइंडर इज 1। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 27 टाइम्स इज 14 and the remainder is 1. अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 2। Now 2 3 times is 6 and the remainder is 1. अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 times is 2 and the remainder is 1. अब देखें यहाँ पर हमारे पास 1 है, अब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे,
इनफैक्ट हम इसको रीड आउट करेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, आप इनको बारी बारी रीड करते जाएं। 1 then 1 then again 1 then again 1 then again 1 then 0 and then 1. So this is the binary value for 125. इसी तरह आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह इस एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू बाइनरी में हमने डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड किया था, बट इन दिस कन्वर्जन वी विल डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8 repeatedly till we reach the quotient value of less than 8. उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि we will divide the decimal number by 2 till we reach the quotient value of less than 2. That means 0 or 1. But in this conversion we will divide the decimal number system by 8 till we reach the quotient value of 0 to 7 or less than 8, because there are 8 digits in the octal number system. बाकी प्रोसेस सेम है, हम वही इंटीजर डिवीजन यूज़ करेंगे और रिमाइंडर को एक साइड पर लिखते जाएंगे, उसके बाद बॉटम टू टॉप रीड करेंगे तो ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी। ये जिस तरह से हमारे पास लेआउट। डेसिमल नंबर को हम 8 पे डिवाइड करेंगे, कोशेंट आएगा, उसका रिमाइंडर लिख देंगे। फिर अगर वो कोशेंट 8 से ज़्यादा है तो उसको फिर 8 पे डिवाइड करेंगे, फिर उससे कोई कोशेंट आएगा, फिर रिमाइंडर लिखेंगे। फिर अगर वो कोशेंट 8 से ज़्यादा है फिर डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास जो कोशेंट है वो 8 से लेस नहीं आ जाता। जब 8 से लेस आएगा उसको हम बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि ये एग्जाम्पल एक्चुअली किस तरह से सॉल्व होगी। 123 in decimal is equal to question mark in octal. Process is same. We will create this layout. We will write 123 here and we will divide it by 8. Now 8 multiplied 10 is equal to 80. 8 multiplied by 11 is equal to 88. 8 12 times is equal to 96. 8 13 times is equal to 104. 8 14 times is equal to 112. 8 15 times is equal to 120. Now this is the closest. अब हम क्या करेंगे, उसी तरह इंटीजर डिवीजन करनी है। तो हमें पता चल गया कि 123 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे और क्लोजेस्ट जो हमारा वैल्यू है वो 120 है, क्योंकि इससे अगली वैल्यू 128 हो जाएगी। तो हम करेंगे 8 15 टाइम्स इज इक्वल टू 120 एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर? आवर रिमाइंडर इज 3. सो वी विल राइट the quotient here and the remainder here. अब हमारा क्वोशेंट 15 है, इट मीन्स इसको हम दोबारा 8 पे डिवाइड कर सकते हैं। 8 2 टाइम्स इज 16 और 8 1 टाइम इज 8. सो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या 8 है, क्योंकि हमने स्मॉलर वैल्यू पे जाना। सो हम क्या करेंगे, 8 1 टाइम्स इज 8 and the remainder is 7. अब हमारी जो क्वोशेंट वैल्यू है ये 8 से कम है। सो हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको राइट अप कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 3 and 7.
So 123 of the octal system of the decimal system is equivalent to 137 of the octal number system. यहाँ पर एक और हमारे पास एग्जाम्पल है. We are going to convert 569 of the decimal into octal number system. Now we will divide 569 by 8. Now 870 times is 560 and 871 times is 568. तो ये क्लोजेस्ट है. सो 8 को जब हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 568 मिलेगा और रिमाइंडर क्या होगा 1. ये रिमाइंडर हमने 1 लिख दी. अब ये 71 क्योंकि 8 से ज़्यादा है इसको हम दोबारा 8 पे डिवाइड करेंगे. 8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, अगर 9 से करें तो 72 आता है और 8 से करें तो 64 आता है. तो 64 क्लोजेस्ट है. 8 टाइम्स इज 64 और जब हम 71 में से 64 को माइनस करेंगे तो 7 इज़ द रिमाइंडर. अब दोबारा 8 क्योंकि कोशेंट वैल्यू हमारी 8 से ज़्यादा ही है या 8 के इक्वल है तो हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे. 8 1 टाइम्स इज़ 8 एंड द रिमाइंडर इज़ 0. सो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर लेंगे और हम इसको रीड कर लेंगे 1 0 एंड 7 1. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट. बाकी ये 2 एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से. नेक्स्ट वी हैव डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. ये भी बिल्कुल ऑक्टल और बाइनरी की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने जो डेसिमल नंबर है उसे 16 से डिवाइड करते जाएंगे रिपीटेडली. कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारी कोशेंट वैल्यू 16 से लेस ना आ जाए. यानी जब तक कोशेंट वैल्यू 0 और 15 के इन बिटवीन आ जाए तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे और फिर उसी तरह हम रिमाइंडर को कंकैटिनेट करके हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख देंगे. जैसे ये इसकी लेआउट है. वी विल हैव अ डेसिमल नंबर, वी विल डिवाइड इट बाय 16 रिपीटेडली. We will write the quotient and remainder in this format, and after division we will check if the quotient value is less than 16 or not. If it is less than 16 then our process is completed, and if it is not we will again perform the same process. Now this is the first example. We are going to convert 40 into the hexadecimal system. Let's suppose we have 40. 40 is in decimal system and we are going to convert it into the hexadecimal system. Now this is, और जो हमारी टारगेट है उसकी बेस 16 है. Now अब हम क्या करेंगे, उसी तरह ये एक लेआउट क्रिएट कर लेंगे. हम यहाँ पर राइट अप करेंगे 40 और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 16 से. Now 16 1 times is 16, 16 2 times is 32 and 16 3 times is 48. हम 48 वाली वैल्यू को स्किप करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे 32 की वैल्यू को क्योंकि ये क्लोजेस्ट है. सो हम इससे इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करेंगे. वी विल राइट 40 here and we will divide it by 16. 16 2 times is 32 and the remainder is 8. अब हम इसको इस फॉर्मेट में यहाँ राइट अप कर लेंगे. हम लिखेंगे 16 2 times and this is the remainder. अब जो हमारी कोशेंट वैल्यू है ये 16 से लेस है, सो प्रोसेस कंप्लीटेड. अब हम इसको इस डायरेक्शन में रीड कर लेंगे. हम कहेंगे कि 40 of the decimal system is equivalent to 28 of the hexadecimal number system. तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा. इसी तरह हम लेट्स सपोज 427 को डिवाइड करते हैं, 427 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में. तो आवर क्वेश्चन इज़ convert 427 of the decimal system into equivalent hexadecimal system.
we will have base 10 here and here we have base 16. Now again 16 25 times is equal to 400. 16 26 times is equal to 460 and 16 27 times is equal to 432. Now we will choose the option 416. तो यहाँ पर हम लेआउट ड्रॉ कर लेंगे. हम सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 427, यहाँ पर आ जाएगा 16. सो 16 26 टाइम्स इज़ 416 और 427 में से अगर हम 16 को डिवाइड कर माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है. यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं. 427 minus 416 we have 11. so 11 is the remainder. इसको मैं यहाँ पर आपको राइट अप भी कर देता हूँ कि इस तरह से हमारे पास लेआउट बनेगी. हम 427 को डिवाइड करेंगे 16 पर, we will get 26 quotient and here we will have 416 as a value and we will have 11 as the remainder option. अब अगर आप देखें तो ये जो कोशेंट वैल्यू है ये 16 से लेस नहीं है. सो हम अगेन डिवीजन परफॉर्म करेंगे. 16 2 times is 32 and 16 1 times is 16. So we will be using the first option. 16 1 times is 16 and we have remainder 10. Now this is the quotient and it is less than 16, so we will not further go for division. Now we all know that in hexadecimal 10 is equal to A, 11 is equal to B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, 14 is equal to E and 15 is equal to F. So we will say that this is equal to A and this value is equal to B. सो हमारा रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, हम इसको रीड आउट करेंगे इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में. तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 1AB. सो 427 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 1AB ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो बाकी ये दो एग्जांपल्स आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ कन्वर्जन्स परफॉर्म करेंगे.